आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर दिल की बात और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन हार्ट केयर। इमेजिन कीजिए कि आप जाते हैं एक हेल्थ चेकअप के लिए कुछ सालों में फ्रॉम ईयर और आपके डॉक्टर जो है परफॉर्म करते हैं एक इंटरनल स्कैन ऑफ योर हार्ट। Now they find a small hole between the chambers that could be a potential structural heart disease. Now using technology, they can show you in a vivid 3D holographic image exactly how the blood is flowing incorrectly through your heart and increasing your risk. Your doctor isn't worried because treatment is just a matter of using those images to create a biologically compatible patch through the 3D printer in their office and placing it over the hole right there and then. How close are we to this reality? Discussing the latest technology for treatment of heart disease, we've got with us today Dr. Viveka, Principal Director and Chief of Cath Labs PanMax Cardiac Sciences. With over 2 decades of experience, Dr. Viveka is an award-winning cardiologist whose research has contributed tremendously to cardiology. He specializes in complex angioplasties. और मेरे साथ आज हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल. He is a Senior Director and Unit Head of Cardiology, Max Hospital, Saket. Dr. Rajiv Agrawal is a senior interventional cardiologist with over 30 years of experience. Not only did he receive his DM cardiology training and degree from AIIMS, Delhi, but he also went on to become an associate professor of cardiology in the same institute. Thank you so much, Dr. Agrawal and Dr. Viveka. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. पहला सवाल आज का डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी से. So to start with, how is technology improving the survival rate when it comes to heart treatment? Yeah, hi Nitin, and thanks for that effusive introduction. And I would like to say कि वर्ष 2020 में 2020 में technology has really improved, and more importantly, all this technology is available to our patients in India. We are able to diagnose the heart attack earlier and earlier, even by doing a bedside test. So it's almost like a pregnancy test. You know, you take a drop of blood and you put it on this strip, and it will tell you whether you are having a heart attack or not. You have many more tools like bedside ultrasound, etc., which are available to you for further diagnosis. Before you go for the conventional angiography, you can do CT angiography, which will pick up clots which have gone to the lungs, which will pick up dissection of the aorta, which is a very dangerous disease which is difficult to diagnose. And सबसे बड़ी बात, अगर आपको बिल्कुल एक्सट्रीम वाली बीमारी है तो आर्टिफिशियल हार्ट भी आज की डेट में उपलब्ध है. आर्टिफिशियल हार्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस. It is available not only abroad but also in India, and with Max Healthcare. And for end stage heart failure also we have treatment which is available. So we have technology across the whole gamut from diagnosis to treatment. Fantastic. डॉक्टर विवेका, आपसे पूछना चाहूँगा, ट्रांसकैथेटर आयोटिक वैल्यू इम्प्लांटेशन जिसे टैवी भी कहा जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है? इस प्रोसीजर को एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाइए ताकि हमें भी समझ आ जाए. बिल्कुल, जैसे कि हार्ट की मेन वाल्व जिसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं, अगर वो सिकुड़ जाता है और पूरे ऑर्गन्स में ब्लड एडिक्वेट नहीं जा पाता है तो पेशेंट सडन डेथ हो सकती है. और ये खास करके जो एल्डरली लोग हैं, जो हाई रिस्क हैं, उनके में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. और जो भी एल्डरली हैं या उनको साथ के अदर बीमार डिजीज़ हैं जैसे लंग्स की, किडनी की, तो जनरल एनेस्थीसिया में ओपन हार्ट सर्जरी में रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है. लेकिन टावी एक रेगुलर एंजियोप्लास्टी की तरह लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं या कॉन्शस सेडेशन में. तो पैर की नस के द्वारा अमूमन हम एक वाल्व ले जाते हैं जिसको कि बैलून के ऊपर क्रिम्प करके और पुराने वाल्व को बलून से डायलेट करके उसके ऊपर ये वाल्व लगा देते हैं. और ब्यूटी है कि ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है, इमीडिएटली ये काम करने के शुरू कर देता है. तो हम इसको टेक्नोलॉजी वाइज कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम स्टेंट लगाते हैं उसी तरह से ये वाल्व भी लगता है. तो ये एक रेवोल्यूशन है इन 2020 में, इस शताब्दी का बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है कि बगैर ओपन हार्ट के अगर हम वाल्व बदल लें तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है. डॉक्टर साहब, आज मैं आप दोनों से कुछ ऐसी बातें करूँगा बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है. कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा इंट्रीग्ड हुआ मैं जब मैंने पढ़ा इस बारे में. तो आपसे पहले डॉक्टर विवेका पूछना चाहूँगा, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिवाइसेस की थोड़ी बात करते हैं. तो सबसे पहले तो लीडलेस पेसमेकर के बारे में बताइए, हाउ इज इट डिफरेंट? बिल्कुल, लीडलेस पेसमेकर एक ऐसा पेसमेकर होता है जो कि 2 सीसी कैप्सूल, बिकोसूल कैप्सूल होता है, उसकी साइज़ का होता है और जिसको सिर्फ हम लोकल एनेस्थीसिया में 10 मिनट में
हार्ट राइट वेंट्रिकल जो दाईं साइड का हार्ट होता है उसके अंदर अटैच कर देते हैं। इसके अंदर हुक्स होते हैं जिसको अटैच कर देते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इसकी बैटरी लाइफ 15 साल होती है, MRI कंपैटिबल होता है और ये ब्लूटूथ कंपैटिबल डिवाइस है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत ही सुंदर टॉय है जिसको कि हम रेवोल्यूशन ऑफ लास्ट सेंचुरी का अवार्ड भी US में मिल चुका है। तो डेफिनेटली अब हम जो लीड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो ऑपरेशन या सर्जिकल स्कार रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस लीडलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा अवॉइड किए जा सकते हैं। अब पहले ये सिंगल चैम्बर पे लीडलेस पेसमेकर होता था, अब नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में डुअल चैम्बर भी आ जाएगा। जी, पर ये जो आप लीडलेस वाला बोल रहे हैं पेस मेकर, ये सारे के सारे ब्लूटूथ इनेबल्ड नहीं होते, कुछ होते हैं इसमें जो ब्लूटूथ वाले होते हैं, राइट? नहीं, लीडलेस पेसमेकर में अभी जो टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ से उसकी मोबाइल पे हम उसको प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, बट कुछ नई पेसमेकर्स आए हैं जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो कि डुअल चैम्बर पेसमेकर। आज भी मैंने एक डुअल चैम्बर ICD लगाया जो कि ब्लूटूथ जिसको टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्लू सिंक टेक्नोलॉजी, जो कि बैटरी बहुत कम लेता है और इसके पूरे परफॉर्मेंस को हम पेशेंट के अपने मोबाइल पे डेटा दे सकते हैं और पेशेंट को अपने मोबाइल पे पता चलेगा कि उसके पेसमेकर की, उसके ICD की फंक्शनिंग कैसी है, कितनी बैटरी बची है और उनको हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाह, मतलब कमाल की टेक्नोलॉजी। पर ऐसा तो नहीं है ना कि घर में कोई चुन्नू हो, उसने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया तो दिक्कत हो जाए? नहीं, सो इसमें मोबाइल ये से? प्रोटेक्शन है, इसमें पेशेंट खुद उसके पैरामीटर्स नहीं चेंज कर सकता। हाँ जी, पता लगे बच्चे ने उठा लिया, आजकल सब अपने बच्चों को मोबाइल नहीं, देते हैं, बिल्कुल नहीं। दिक्कत पड़ जाए। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट्स योर टेक ऑन मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशली होम मॉनिटरिंग टूल्स जो हैं हार्ट के लिए, आर दे एक्यूरेट या आपको लगता है नहीं खुद नहीं देखना चाहिए, डॉक्टर के पास ही जाइए डायग्नोसिस के लिए? So let's start with simple things because we've talked of very complex things and these are also important, but also we need the simple things. Yes. ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर का बहुत चोली दामन का साथ है आपके हार्ट की हेल्थ से। और आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर हम कहते हैं कि अस्पताल में मेजर करने की बजाय अगर आप घर पे मेजर करें तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से मेजर हो जाता है। आजकल तो वही जैसे और डिवाइसेस के बारे में है कि ये कंपैटिबल होगा, वो वायरलेसली आपके मोबाइल फ़ोन पे भी डेटा दे देगा। एंड if you measure blood pressure only in the hospital, there will be some people who are anxious when they come to the hospital and they will show falsely high reading. This we call white coat hypertension. तो घर पे हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर मेजर करें तो वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बीच बीच में चेकिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से आजकल हमारे पास इतने सारे स्मार्ट वॉचेज़ आ गए हैं जी, तो चाहे एप्पल वॉच की बात करें या किसी और की बात करें, इनसे तो आप ECG भी निकाल सकते हैं। हालांकि वो पूरा ECG नहीं होगा, लेकिन जो एक लीड का ECG आप निकाल लेंगे उसमें आप हार्ट की रिदम को डायग्नोज कर सकते हैं, कुछ हद तक हार्ट अटैक भी डायग्नोज कर सकते हैं। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, और आज की डेट में ये कोविड के टाइम में ये और भी ज़रूरी हो गया है, केवल ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिक के पास नहीं जाना चाहता। तो जो आप घर पे बैठ के बिना एक्सपोज अपने को किए आप मेजर कर सकें, तो और टेक्नोलॉजी हमारा साथ दे रही है, तो आज की डेट में हमें इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। तो बेसिकली इंडिकेटिव एनालिसिस के लिए घर पे सब कुछ कर ले, पर प्रिसिजन के लिए जाना ही पड़ेगा। प्रिसिजन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। सो फॉर दैट ऑल्सो वी हैव वीडियो कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स, but the better the data that you have, the more useful it will be. So trust but verify, and don't think that you know everything, but at least generate some data at home. ये जो आपने बात की ना, डोंट थिंक दैट यू नो एवरीथिंग, मेरा अगला सवाल डॉक्टर विवेका से इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो पेस मेकर्स आपने कहा जैसे ब्लूटूथ इनेबल्ड भी है और सारा डेटा भी जो है मोबाइल फ़ोन पे आ सकता है, यूज़र देख सकता है उसे, तो कहीं आपको भी कभी ऐसी दिक्कत हुई है कि पेशेंट्स जो है वो देख लेते हैं, फिर वो अपने डॉक्टर बन गए हैं और फिर उनको लगता है कि अब हमें सब कुछ पता है, वो आपको बताने लगते हैं डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये दिक्कतें आने वाली है या ये दिक्कत चल रही है। डज दैट हैपन अ लॉट एंड हाउ डू यू कंट्रोल दैट? कैन दे गेट एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट? Yes, so I think it's not only with the Bluetooth enabled devices, it's all what we call Google Doctor. So now today every patient has right and has got goes on the Google next. Yeah. It's like buying any other commercial product. So health is also become a commercial product. So I don't blame them, but obviously a little knowledge is more dangerous thing.
तो जिस तरह की नॉलेज उनको ऑनलाइन मिलती है, जिस तरह की नॉलेज उनको गूगल पे मिलती है, वो पूरा एडिक्वेट नहीं होता है। तो एक फ़ील उस सब्जेक्ट का, उस प्रोडक्ट का, उस प्रोसीजर का, उस ऑपरेशन का वो ले सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन अल्टीमेटली उनको अपने डॉक्टर से सलाह करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। और ऑनलाइन जैसे अगर हमने जैसे होम मॉनिटरिंग की बात की, आज की डेट में जितनी भी इम्प्लांटेबल डिवाइसेस हैं उसको हम होम मॉनिटरिंग गैजेट से लिंक करना चाहते हैं। तो अब ये एक रियलिटी है, चाहे वो आईसीडी हो, पेसमेकर हो, सारी डिवाइसेस होम मॉनिटरिंग पे अवेलेबल हैं। घर पे पेशेंट बैठ के, जैसे हमारे के भी इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं या रिमोट में रहते हैं जहाँ पे कि शहर नहीं है, उनके सारे डिवाइसेस का डेटा हमारे पास आ सकता है, जो जिस कंपनी का लगा है उनके पास आता है। और अगर उसमें कोई भी ऊपर नीचे इन्फॉर्मेशन होती है तो हम ऑनलाइन ही उनकी दवा भी चेंज कर देते हैं, जिससे कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत कम पड़े। तो होम मॉनिटरिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट इसका मिसयूज़ बहुत कम है। अगर आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन लें, उसमें ये देखा गया है कि होम मॉनिटरिंग डिवाइसेस से पेशेंट का हॉस्पिटल जाना की ज़रूरत कम हो जाती है। और सबसे अच्छी बात कि ये डिवाइस आप मॉनिटर कर भी रहा है, फिर भी बैटरी कम खर्च होती है और बैटरी लॉन्जिविटी बढ़ती है। तो आई थिंक ये बहुत ही फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी है, जिससे कि पेशेंट का भी भला होता है और डॉक्टर का भी, क्योंकि वो अननेसेसरी पेशेंट विजिट बच जाता है और पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में आने से पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ही मायने रखते हैं। जी डॉक्टर अग्रवाल, जो आपने बात की थी फिटनेस वॉचेस की, आप बात कर रहे थे, आई वुड लाइक टू कम बैक टू दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रिलाई ऑन दैट। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो वर्कआउट वगैरह करते हैं तो उस पर बार बार जो अपना बीपीएम वगैरह चेक करते रहते हैं, तो वो इंडिकेटिव है। बट डू यू थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू हैव इन योर हाउस? इट्स अ गुड थिंग टू हैव ऑन योर रिस्क कि भाई आपको अपने हार्ट की हेल्थ पता लगती रहेगी, कम से कम इंडिकेशन मिलता रहेगा। So I think you put it very well. It is indicative, but it's not the end of the story. And just throwing money at the problem is not going to take care of it. Absolutely. I think you and I know if we have exercised or not. Yes. And for that matter, the fitness band, it has an activity tracker. And I have noted myself that sometimes if you sit in the car on the back seat, chauffeur-driven car, और आप तो बैठे रहे और उसने 2000 स्टेप्स लॉग कर ली क्योंकि वो मूवमेंट हो रहा है। तो आपको हर चीज़ को समझना है। कुछ कुछ आपको वो अलर्ट देता रहेगा। जैसे कुछ लोग सेट कर देते हैं कि 1 घंटा हो गया, आई मस्ट गेट अप एंड आई शुड वॉक, दैट हेल्प्स। सम पीपल हैव सेट गोल्स फॉर देमसेल्व्स, इट हेल्प्स। You can have weighing machines which have body composition analysis, and that can keep giving you information. But it is indicative, and you still have to do that exercise. Absolutely. Just buying a treadmill and using it to hang your clothes is not going to work, which is often a common thing which people do. So we need to get real. We need to use these technologies as tools. They should not become our masters. And if our common sense is telling us something different, कि भाई इसने तो दिखाया कि मैंने इतनी एक्सरसाइज कर ली लेकिन मैंने तो की नहीं, तो then you are probably correct. So again, look at it with an open mind, use it to help you, but जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करनी होगी, वेट ठीक रखना पड़ेगा, स्मोकिंग छोड़नी होगी, और ये याद रखना होगा कि ये जो प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, इन सिंपल प्रिवेंटिव चीज़ों से 80% हार्ट डिजीज़ आप कम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात। और आपकी बात सुन के मेरे को इसलिए थोड़ी हंसी आ गई क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जो आपने कहा, मैंने वो वॉच पहनी हुई थी और मेरी साइकिल पंचर हो गई, तो मैं ऑटो में लाद के उसको आया, पर रास्ते में जो उसकी स्पीड दिखा था 65 किलोमीटर पर, तो मेरे जो साइकिलिंग ग्रुप है वो आज तक समझ नहीं आया कि इसने इतनी तेज़ साइकिल चला के 25 किलोमीटर कवर कैसे किए, और मैंने आज तक बताया भी नहीं उनको। आज पता लग जाएगा तो अलग बात है। डॉक्टर विवेका, सबक्यूटेनियस आईसीडी और वीनस आईसीडी जिन्हें कहा जाता है, इसमें क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? थोड़ा बिल्कुल, ये भी एक नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि सडन कार्डियक डेथ, मतलब कि सिम्टम होने के 1 घंटे के अंदर अंदर हार्ट बीटिंग फास्ट होने की वजह से अगर डेथ हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आईसीडी लगाते हैं। तो पहले हम आईसीडीज़ जिनमें कि पेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब कि अगर हार्ट बीटिंग स्लो नहीं होती है तो उनको सिर्फ सडन डेथ से बचने की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए हमने अब ये देखा है कि सबक्यूटेनियस आईसीडी आ गया है, जो कि हार्ट के अंदर नहीं जाता है, ये बिल्कुल स्किन और रिब बोन के बीच में लगाया जाता है, और वो उतना ही प्रोटेक्शन देता है जो कि वेन के अंदर लगाने वाले कन्वेंशनल आईसीडी को प्रोटेक्शन देता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जिनको कि जैसे यंग पेशेंट्स हैं, जिनको रग्बी खेलते हैं, अभी मैं पुणे गया करके हमने एक आईसीडी लगाया था, सबक्यूटेनियस आईसीडी, क्योंकि वो
26 ईयर ओल्ड बॉय था एंड उनको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी थी, हार्ट में काफ़ी एरिथमिया होता था। तो उनके में अगर हमने ट्रांसवीनस लगाता तो फिर उनकी ज़िंदगी अभी सिर्फ 26 साल की थी और 75 साल तक उनको न जाने कितनी बार वेन में लगाना पड़ता। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि पेशेंट के वेन को और अपने स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखता है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है उन तरह के लोगों में जिनमें डायलिसिस की ज़रूरत होती है, जिसमें वेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कंजेनाइटल बाय बर्थ उनको हार्ट की दिक्कत होती है, जिसमें कि हम इसको लगा सकते हैं। तो ये सबक्यूटेनियस आईसीडी एक रेवोल्यूशन है और मेरे ख्याल में जितने लोगों को पेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब हार्ट बीटिंग स्लो नहीं होती है या फिर उनको सीवियर हार्ट फेलियर नहीं होता, तो उन सारे मरीज़ों में सबक्यूटेनियस आईसीडी लगना चाहिए, जिससे कि उनके अपने स्ट्रक्चर्स सही सलामत रहें, वेन्स वगैरह। फैंटास्टिक। पार्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर अग्रवाल कि एम्बुलेटरी सर्विसेज जो है दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन सेविंग लाइव्स। जो पहला कॉल जाता है हार्ट अटैक्स में स्पेशली, जब एम्बुलेंस पहुंचती है सारा काम जो है वहीं से शुरू हो जाता है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द सेम एंड हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजीज इंश्योर दैट एम्बुलेंसेज आर रेडी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ हार्ट इमरजेंसीज? So you are very right. The ambulance is where the treatment begins, Right. and every minute counts. You know, every minute is like gold. And the ambulance is not just a fast bus which is bringing you on a stretcher. The ambulance goes out with an emergency medical technician. It is fully loaded with all kinds of equipment. And the emergency medical technician is constantly in touch, two-way communication with the doctor in the emergency room. ECG can be transmitted, advice can be given. They have all kinds of gadgets to measure the oxygen level, of course give oxygen. Even ventilator can be given in the ambulance. If we know, we can provide the pacemaker in the ambulance, balloon pump in the ambulance. Sometimes people are transported फ्रॉम रिमोट एरियाज़, सो एयर एम्बुलेंसेज भी होती हैं और लैंड एम्बुलेंसेज भी होती हैं। रिमोट एरिया से लाना है तो 1 घंटा उसमें लगेगा, तो आप उस 1 घंटे में पेशेंट का जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वो आप शुरू कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी इसमें हमें हेल्प कर रही है। तो टेक्नोलॉजी से आप ECG ट्रांसमिट कर सकते हैं, डॉक्टर इमरजेंसी रूम में बैठ के कॉन्स्टेंटली गाइड कर सकता है। वी कैन बी मॉनिटरिंग ऑल दोज पैरामीटर्स एंड सेंडिंग इट फ्रॉम द एडवांस्ड कार्डिक मॉनिटर बैक. And most importantly, I think the availability of the ambulance, that has to be ensured. Max has a program where we say that within the NCR region, we have a 30-minute max, that is the slogan, that the ambulance will reach you within 30 minutes and get you to the hospital. And so you should have the emergency number saved and maybe displayed prominently in the house. There are also app-based systems, etc. Also, अपने नेबर से बना के रखिए, कभी ज़रूरत में आप उनके काम आइए, कभी वो आपके काम आएंगे। तो ये भी जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकलिटीज़ और ये जो ह्यूमन टच है उसको ना भूलें। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से असिस्टेंस तो काफ़ी मिल जाती है, बट आई ऑल्सो बिलीव दैट द मैजिक एंड द स्किल अल्टीमेटली इज़ इन द हैंड्स ऑफ द डॉक्टर। तो आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू फॉर योर सर्विस टू द नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात। मैं हूँ खुराफात रितिन।